Yeah, we are very glad that we could meet once again like this. और हम बहुत ही आनंदित हैं आज शाम को कि इस प्रकार आज हम मिल पा रहे हैं। I would like to turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 8. और लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय हम निकालेंगे। The first portion of this chapter, Jesus is telling about a parable. और पहला जो वचन का भाग है यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते हैं। And he says about this parable from the 5th verse to 8th verse. और 5 से 8 वचन के भीतर यीशु मसीह इस दृष्टांत को कहते हैं। Then there were many people when Jesus was sharing about this parable. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जब यीशु मसीह इस दृष्टांत से बात कर रहा है तब। When you read the first and second verses and also third verse, we find what are the types of people were there around Jesus. और यहाँ पर जब हम तीसरे वचन को पढ़ते हम देख पाते किस प्रकार के लोग यीशु मसीह के आसपास उस वक्त वहां पर थे। People who were delivered from the evil spirits and people who were healed from diseases were there. और यहाँ पर जो दुष्टात्मा से छुटकारा पाए हुए लोग, जो बीमार जो दो लोग जिन्हें चंगाई मिली थी वे लोग थे। And some of the supporters of Jesus Christ और were also there. कुछ लोग जो यीशु मसीह की सहायता या सहयोग देने वाले लोग थे वे भी वहां पर उपस्थित थे। And the fourth verse says there were multitude of people coming from different cities. चौथे वचन में लिखा है कि बड़ी भीड़ वहां पर अलग अलग नगर से वहां पर आई थी। Then Jesus started telling this parable. तब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत से बातें की। And intentionally he stopped with the parable without telling its meaning. और यीशु मसीह ने जानबूझकर वहां पर वो खड़ा रहता है उस दृष्टांत को कहने के बाद उसका अर्थ किए कहे बिना। Nobody asked Jesus what is the meaning of this parable except the disciples. और यहाँ पर कोई भी अर्थात केवल शिष्यों को छोड़कर कोई भी यीशु मसीह को इस दृष्टांत का अर्थ नहीं पूछता है। 9th verse we read that the disciples then were asking what is the meaning of this parable. और 9 वचन में चेले यीशु मसीह से पूछते कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। Then Jesus started explaining. तब यीशु मसीह उनको वहां पर उसका विवरण करता है। Suppose imagine this situation that none of them had asked for the meaning of the parable. सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि इस दृष्टांत के बाद किसी ने भी यीशु मसीह से इस दृष्टांत का अर्थ शायद नहीं पूछा होता। What would have Jesus done at the time? उस समय यीशु मसीह क्या करता? I think he would not have explained the parable to them. और यीशु मसीह शायद उनका उस दृष्टांत का अर्थ उनको नहीं समझाता। Because there was not a single person who is interested or who has a thirst or a hunger to know more about this parable. क्योंकि वहां पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको उस दृष्टांत का अर्थ जानने की भूख या प्यास हो। That's why Jesus says in the 18th verse, इसलिए यीशु मसीह 18 वचन में कहता है, you be careful on how you hear or listen. यीशु कहता है 18 वचन में, इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। He who has more will be given, and who doesn't have, even what he thinks he has got will be removed from him. क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। The previous verse, 17th verse, he says, there is no secret which is not exposed. 17 वचन में यहाँ पर कहता है कि कुछ ऐसा छिपा नहीं जो प्रकट न हो। There is no hidden thing which cannot be revealed. ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं जो जाना न जाए। Then Jesus says in the 16th verse, और 16 वचन में यीशु कहता है, nobody would light a candle and cover it with a bushel or a vessel. कोई भी दिया जलाकर बर्तन से उसको नहीं ढांपता है। Neither will he keep the candle under the cot. और वो दिया जलाकर उसको खाट के नीचे नहीं रखता है। Those who enter into the house should see the light. That's why the candle will be kept on the lampstand. और उस दिए को दीवट पर रखा जाता है ताकि भीतर आने वाले उस प्रकाश को प्राप्त कर सके। So Jesus says that even any parable, it will have to come out. The meaning will come out. यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि हर दृष्टांत में से उस अर्थ को बाहर आना है या वो करना है। But when it will come out? और वो अर्थ कब बाहर आएगा? When the secrets will be revealed. और जब वो गुप्त बातें जो हैं वो रहस्यमय बातें वहां पे बताई जाएगी। 18th verse, be careful how you ask or listen. 18 वचन में जैसे लिखा है कि सावधानी से हमको देखना है कि हम कैसे सुनते हैं या मांगते हैं। So Jesus is now telling about after telling the
meaning of the parable, he is telling these verses. और यीशु मसीह इस दृष्टांत का अर्थ बताने के बाद इस बात को कह रहा है, Yeah. Nothing is secret, nothing is hidden. Everything has to be revealed. और यहाँ पर कुछ भी ऐसा छिपा हुआ नहीं, कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं, हर चीजें जो प्रकट होगी। In Psalm 25, we read a verse that God reveals the secrets to those who fear him. और भजन संहिता 25 में हम वचन को पढ़ते कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर अपने रहस्य को प्रकाशनों पर उनके ऊपर प्रकट करता है। So Jesus has many things under store for us. और यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए उसने रखी है। Yeah, you may turn to Psalm 25 and verse 14. और भजन संहिता 25 अध्याय वचन 14। Psalm, 25, 14. Yeah, you can read it in Hindi, brother. वचन 14, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। Yeah, the secret of the Lord will be revealed to those who fear him. जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर अपना रहस्य या भेद उन पर प्रकट करेगा। What is the sign that somebody is having the fear of God? परमेश्वर का भय मानने कोई व्यक्ति यदि मानता है तो उसका चिन्ह क्या होगा? He will ask the Lord, Lord, reveal the secrets of my heart. वो परमेश्वर से मांगेगा कि प्रभु मेरे हृदय के जो गुप्त बातें उस पर वो मुझ पर प्रकट कर। Lord, reveal the secrets of your heart. और प्रभु तेरे हृदय के जो गुप्त बातें हैं वो मुझ पर प्रकट कर। Yeah, two revelations are there. दो प्रकाशन यहाँ पर है। Reveal about myself, Lord. सबसे पहले मेरी जो बातें हैं मेरे संबंध में वो तू प्रकट कर। Reveal about yourself also. और दूसरी ओर परमेश्वर तेरे बारे में जो बातें वो भी मुझ पर प्रकट कर। If I get a revelation only about myself, I will get discouraged. यदि मैं अपने संबंध में ही प्रकाशन को प्राप्त करूंगा तो उसको जानने के बाद मैं निराश हो जाऊंगा। I will lose my heart. मैं अपने हृदय को खो बैठूंगा। It will be so discouraging that I will run away. इतना मैं निराश हो जाऊंगा कि वहां से दूर भाग जाऊंगा। So that's why Jesus wants to reveal something in us, and he will reveal himself, his love, his concern, his passion for us. और परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी ही जानकारी नहीं या हमारे बारे में नहीं, लेकिन अपने बारे में भी परमेश्वर प्रकट करेगा। उसका प्रेम, उसका जो मनोवेग हमारे प्रति है, जो ख्याल चिंता है वो भी प्रकट करेगा। So here Jesus told about a parable and then he stopped. यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत कहकर रुक जाता है। He didn't go further. उसके आगे नहीं बढ़ता है। He was waiting to know if somebody is really want to the meaning of the parable. यीशु मसीह राह देखता है कि उस दृष्टांत का अर्थ समझने के लिए क्या कोई बहुत ही धीरज से आतुर है या उसके बारे में चिंता रखता है। In the same way, God will slightly reveal about yourself. इसी प्रकार से परमेश्वर थोड़ा ही आपके संबंध में आपके ऊपर थोड़ा सा प्रकाशन देगा। When you are interacting with somebody, your wife or your husband or some stranger, you feel that you have a anger inside, and slight conviction will be there about your anger. और जब आप अन्य लोगों से बात करते, चाहे वो पति है, अपने पति है या अजनबी बाहर के लोग हैं, आप देख पाएंगे आपके हृदय में थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध उनके प्रति आप देख पाएंगे। If you ask God, Lord, why I felt anger, reveal it to me, then God may show the next step, how much selfish you were and how much proud you were. और जब परमेश्वर से पूछेंगे कि प्रभु तू मुझे दिखा कि क्यों मैं इस प्रकार से क्रोधित हूं, तब परमेश्वर मुझे दिखाएगा कितना मैं पूरी तरह से क्रोधित व्यक्ति हूं, मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूं और घमंडी हूं। Anger is the result of you being very proud. और हम बहुत ही घमंड से भर जाते, इस कारण से उसके परिणाम स्वरूप वहां से क्रोध बाहर आता है। See, we read in the book of 2 Corinthians chapter 3. दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। Moses was coming from the mountain after being with God. और मूसा पर्वत पर से नीचे उतर कर आ रहा है जब परमेश्वर के साथ समय बिताकर। And then he was coming down. और वो नीचे उतरता है पर्वत से। Paul, out of the revelation he got, he records something here. पौलुस को जो प्रकाशन मिला उसके बाद उसके संबंध में यहाँ पर वो कुछ लिखता है। 2 Corinthians chapter 3 and verse 13. उसका 13 वचन। Yeah. Moses put a veil on his face so that the people of Israel will not see the diminishing glory of his face. और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे। Here St. Paul is comparing the old covenant life and the new covenant life. और पौलुस यहाँ पर पुरानी वाचा का जीवन और नए वाचा के जीवन की तुलना करता है। Old covenant life, as long as you are on the mountain, your face will be shining, and the moment you start coming down to the people, to the temptations, to the low level,
the glory fades away. और पुराने नियम में ये जीवन था कि जब तक हम उस पर्वत के ऊपर रहते तब तक बहुत ही तेज हम पर होता है। जब अब हम नीचे आने लगते हैं लोगों के बीच में और परीक्षणों के पास में आने लगते हैं तो वो तेज जो है परमेश्वर का जो घटने लगता है। When he was on the mountain, top of the mountain, he was seeing the face of God, and his face started shining. जब वो पर्वत की चोटी के ऊपर था तब वो परमेश्वर को देखकर परमेश्वर उसका चेहरा चमकने लगा। But he was coming down and coming down and coming down. और जैसे जैसे वो नीचे आते गया, When he came to the foot of the hill, he was so angry, and he broke the covenant stones and expressed his anger. पर्वत के नीचे तलवे पर जब वो आ जाता है इतना क्रोधित वो हो जाता है कि व्यवस्था की जो पटिया है क्रोध से भरकर उन्हें तोड़ देता है। It's a very serious thing, ये बहुत ही गंभीर बात है, because one way people are waiting to see how the person who was with God for 40 days will behave when he comes down. और यहाँ पर ये लोग जो इंतजार करते हैं कि जो व्यक्ति ऊपर जाकर परमेश्वर के साथ 40 दिन को बिताता है वो कैसा व्यक्ति होगा वो। We'll take an example. एक उदाहरण लेते हैं। You are telling your children and your wife or your husband that you want to spend some time in prayer. और आप अपने पत्नी या बच्चों से कहते हैं कि आप थोड़ा सा समय प्रार्थना में बिताना चाहते हैं। And you close your door and you start praying. और आप दरवाजा बंद कर देते हैं और प्रार्थना करना आरंभ कर देते हैं। After an hour or so, you are going out. और 1 घंटे के बाद फिर आप बाहर जाते हैं। And their children are playing and wife is doing something, and you go and start shouting at them. और वहां पर बच्चे खेल रहे हो, पत्नी कुछ काम कर रहे हो और जाकर आप तुरंत उन पर क्रोधित होकर चिल्लाने लगते हैं। What do they understand, children and wife? और उससे बच्चे और पत्नी क्या समझते हैं? We are really doubtful whether he was praying with God or with the devil. और वो ऐसा समझते हैं कि क्या अंदर जाकर पिताजी पति जो हमारे हैं वो क्या ये प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे थे या शैतान से कर रहे थे? Because a person spending so much time with God, we should come down with the humility of God, with the gentleness of God, with the love of God. और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ इतना समय बिताता है वो बाहर आकर पूरी तरह से नम्रता के साथ, कोमलता के साथ, परमेश्वर के प्रेम के साथ वो व्यक्ति होना चाहिए। Now apply this to the people of Israel. इसको अब हम इस्राएली लोगों के साथ लागू करते हैं। They were expecting Moses, who spent lot of days in the presence of God, and is coming down, and they are very eager to see the reflection of the glory on the face of Moses. और यहाँ पर ये लोग इंतजार कर रहे थे पहाड़ के नीचे कि जब मूसा जो बहुत समय बिताने के बाद पर्वत के ऊपर जब वो नीचे रहेगा तो किस प्रकार का उसका बर्तन होगा, किस प्रकार का वो व्यक्ति होगा। But he became very angry. लेकिन वो आने के बाद बड़ा क्रोधित वो हो जाता है। In another occasion, God asked him to speak to the rock. दूसरे एक घटना के अंदर परमेश्वर उसे वो चट्टान से बात करने के लिए कहता है। There also he started beating the rock with anger. और वहां पर भी बड़े क्रोध के साथ उस चट्टान को कहने के बजाय वो मारने लग जाता है। What did God do? परमेश्वर वहां क्या करता है? God gave him a punishment. परमेश्वर उसको दंड देता है। God told Moses that he will not enter into the promised land. परमेश्वर मूसा को कहता है कि तू उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। What a great punishment it is. कितनी बड़ी ये एक सजा या दंड उसके लिए था। 40 years God prepared him in the wilderness to be the leader of these people, to take them to Canaan. 40 साल तक मरुभूमि में परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया ऐसा अगुवा बनाने के लिए ताकि लोगों को उस कनान के देश में लेकर जा सके। And he, with so much burden, he brought the people through the wilderness and through many miracles and mighty works of God. और बहुत चमत्कारों के साथ, बहुत ही अद्भुत कामों के साथ, बहुत ही एक बोझ के साथ उस मरुभूमि से वो लोगों की अगुवाई करके उन्हें वहां तक लेकर आता है। Almost they came to the border of Canaan. और वहां पर वो उस कनान देश के बहुत ही सीमा तक पहुंच जाते हैं। But Moses misrepresented God to the people. लेकिन यहाँ पर गलत रीति से मूसा परमेश्वर का प्रदर्शन यहाँ पर करता है। So God was very serious. परमेश्वर यहाँ पर बड़ा गंभीर होता है। You are misrepresenting me to the people of Israel. और इस्राएल के लोगों के सामने तुम गलत रीति से मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हो। So big punishment was given. तो एक बड़ी उसको एक सजा दी गई। So we come back to Luke chapter 8. हम लूका 8 की ओर लौटते हैं। Yeah. So Jesus says that I'm not going to have a secret and then put on a cover on that. और यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि मैं उस रहस्य को ऐसे रखूंगा और उसके ऊपर मैं एक ढांप कर कुछ बातों को रखूंगा, ऐसा नहीं कहता है। I want to reveal all the secrets. Nothing is hidden which cannot be revealed.
और सारे उन गुप्त बातों को, उन रहस्यों को पूरी तरह से प्रकट करना चाहता हूं। मैं कुछ भी ऐसी बातों को छुपाना नहीं चाहता। So today you hold on to this verse, 16th verse, Luke 8:16. और लूका 8:16 वचन जो है, आप उसको थामे रखें। Lord, your word says that there is no secret which cannot come out. और प्रभु तेरा वचन कहता है कि ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है कि जो बाहर ना आए प्रभु। There is nothing hidden, Lord, which will not be revealed. और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो जाना न जाए या प्रकट न हो प्रभु। Lord, please reveal about me. प्रभु तू मेरे संबंध में, प्रभु जी तू मुझ पर प्रकट कर। You know, in Deuteronomy chapter 8 and verse 3, we read why God led the people of Israel through the wilderness. और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्यों इस्राएली लोगों को उस मरुभूमि के सफर से लेकर गया, So that they may know what is in their hearts. ताकि वे जान सके कि उनके हृदय में क्या है। God knows what is in our heart, परमेश्वर जानता है कि हमारे हृदय में क्या है, but God wants us to know what is in our hearts. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं जान पाए कि हमारे हृदय में क्या है। Lord, reveal what is in my heart. प्रभु तू मुझ पर प्रकट कर, मेरे हृदय में क्या है। Lord, reveal the bitterness I have. प्रभु जो कड़वाहट में रखता हूं प्रभु, उसको मुझ पर प्रकट कर। Lord, reveal the unforgiving attitude I have. क्षमा न करने वाला जो स्वभाव है उस पर प्रभु मुझ पर प्रकट कर। And God will reveal the secrets. और प्रभु उन रहस्यों को प्रकट हम पर करेगा। He will not withhold anything. वो कुछ भी ऐसा रख नहीं छोड़ेगा। I wanted to read a verse in Zechariah chapter और 13. जकरिया उसका Zechariah chapter 13 and verse 6. 13 अध्याय वचन 6। If someone asks you, what is this scar in your hand? और तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरे हाथ पर यह घाव क्या है। It is the wound which I got when I was in my friend's house. और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि ये वो घाव है जब मैं मेरे मित्र के घर पर था। वो घाव या वो चीजें हैं। Yeah, many times when we are in our stranger's house, when we have some wound in our heart, we will not take it seriously. जब हम एक अजनबी के घर में होते हैं, जब वो हमारे अंदर एक घाव जब होता है, उसको हम गंभीरता से नहीं लेंगे। Some third person has scolded us, some third person has rebuked us, we don't mind. और तीसरे व्यक्ति ने यदि हमको डांटा हो, हमको सुधारा हो, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But when a close friend of mine, when my own wife or when my own husband or when my own brother in the church or sister in the church or close relative, when they speak and if there is a wound, I take it very seriously. और लेकिन जब बहुत ही नजदीकी भाई या बहन जब कलीसिया से मुझको कुछ उतारता है या बोलता है, या मेरे पति पत्नी या रिश्तेदारों में से कोई मुझे बताता है, वो घाव जब मैं बड़ी गंभीरता से लेने लगता आता हूँ। I'm not able to forgive the person. और उस कारण से मैं उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाता हूँ। I keep on meditating on it. उस पर मैं निरंतर मनन करते जाता हूँ। Oh, he has spoken like that, he has done like that, he has not done like that. और उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसे बात किया, उसने ये किया मेरे साथ, वो नहीं किया। So there is a tendency to take vengeance. और हमारे अंदर एक बदला लेने की एक भावना आ जाती है। Oh, you have told me like that. When situation comes, I will also tell like that. और तुमने मुझे इस प्रकार कहा, जब मेरी बारी आएगी, परिस्थिति आएगी, तब मैं भी ऐसा तुम्हारे साथ करूंगा। When we have bitterness and unforgiving attitude, we are giving room for the devil. और जब हमारे अंदर एक कड़वाहट होती है या क्षमा न करने वाला स्वभाव होता है, तो हम शैतान को अनुमति देते हैं हमारे अंदर एक घाव को पैदा करने के लिए। So Jesus told about the explanation in the parable. और उस दृष्टांत के अंदर यीशु मसीह उनको इस प्रकार समझाता है। There are 4 groups. और 4 प्रकार के झुंड है। The first group is in the 12th verse. उसके 12 वचन के अंदर हम देखते हैं लूका 8:12 में, They gave room for the devil to enter their lives. और वे शैतान को अनुमति देते हैं, जगह देते हैं कि वे उनके घर के अंदर एक जगह को ले ले। One side they are reading the word of God, one side they are hearing the word of God, another side they are giving place for the devil. Devil picks up the verses and there is no effect in their lives. और एक तरफ वो वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके जब जीवन के अंदर वो शैतान को भी अनुमति देते हैं, जो आकर उनके जीवन से उस वचन को ले लेता है। 12th verse says that they are not saved. और 12 वचन में लिखा है कि उनका उद्धार नहीं हुआ है। In spite of the efforts they take to hear the word, to listen to the word, they are not coming to real repentance and deliverance.
और यहाँ तक जो प्रयत्न वो लेते हैं सुनने के लिए या जो भी वो वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वो वास्तव में उस नए मन फिराव के उस छुटकारे के अनुभव में नहीं आते हैं। They give room or they give place to the devil to enter. वे शैतान को अनुमति देते हैं वहां पर प्रवेश करने के लिए। How Eve gave place for the devil to enter in her life? और कैसे हम शैतान को अनुमति देते, जगह देते हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए? Through doubt. संदेह के द्वारा। Yeah. Devil was asking, did God tell you not to eat from any of these trees? और शैतान पूछता है जाकर कि क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है कि इन सारे वृक्षों में से तुम किसी इस वृक्ष का फल ना खाना? He creates a doubt. और वहां पर उस संदेह को वो बनाता है। Some question that comes into our mind. कुछ प्रश्न ऐसे जो हमारे मन में आते हैं। You may also be battling about this doubt, some of you. और हो सकता है हम में से बहुत से कुछ लोग होंगे जो ऐसे संदेह के साथ संघर्ष कर रहे होंगे। Is God really loving me? क्या परमेश्वर वास्तव में सच्चाई से मुझको प्रेम करता है? Has He really chosen me? क्या उसने सच में मुझको चुना है? Am I pleasing to God? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर पाता हूँ? Is He pleased with me? क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? For all these questions, the devil may say, do you really think that God is pleased with you? Do you really think that you are saved? He may ask many questions, doubts. और इन सारे प्रश्नों से ये सारे संदेह को साथ शैतान हमारे मन में भी ला सकता है कि क्या हम सच में वास्तव में हमारा उद्धार हुआ है? क्या सच में वास्तव में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं या नहीं? So we can say that the gate is now open. हम कह सकते हैं कि अब ये द्वार जो है पूरी तरह से खुला है। See, we imagine Adam and Eve were living in a beautiful house, and the house has got a door. When they open the door, when they go out, there is a gate. और वहां पर आदम और हवा कल्पना करके देखिए, घर में रहते हैं और वो बाहर जाते हैं, वहां पर एक गेट है, दरवाजा है। जब वो बाहर जाते हैं वो दरवाजा खुल जाता है। So when Eve doubted, it is opening the gate for the devil to come into their garden. और जब हवा ने संदेह किया, तब हवा ने अपने जीवन के अंदर उस वहां पर उस परिस्थिति के अंदर शैतान को आने के लिए अनुमति दी या दरवाजे को खोल दिया। And next, what does the devil do? और दूसरा, आगे बढ़कर शैतान क्या करता है? He shows the attractive fruit, और आगे बढ़कर वो बहुत ही आकर्षित फल को दिखाता है, which God forbid, जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। and she was tempted. और वहां पर उसका परीक्षण या प्रलोभित वो होती है। So many things what God has created beautifully, बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बनाई है, हम same things the devil will take and he will try to tempt you and pull you away from God. और उन्हीं सुंदर वस्तुओं को लेकर शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। Whenever you see something beautiful, जब कभी आप कोई सुंदर चीज को देखते हैं, what thoughts come into your mind? आपके मन में क्या विचार आते हैं? Immediately do you think, what good thing if I have that? और क्या आप तुरंत ये सोचते कि कितना अच्छा होगा यदि तुरंत मैं उन बात को ये बात मेरे पास यदि होती तो? How good it would be if I have that object? और कितना अच्छा होता ये चीज अगर मेरे पास आ जाए तो? Is this thought coming to you? क्या ऐसे विचार आपके पास भी आते हैं? Or another thought may come like this. और दूसरे प्रकार के ऐसे विचार भी आ सकते हैं, God, your creations are so beautiful. प्रभु तेरी रचना, तेरी सृष्टि कितनी सुंदर है। You have created everything for your glory. प्रभु तूने सब कुछ तेरी महिमा के लिए सृजा है। It's not for me. ये मेरे लिए नहीं है। If you give me wholeheartedly, I will take it. यदि परमेश्वर तो इसको देता है पूर्ण हृदय से, मैं इसको लूंगा प्रभु। But everything is for you, Lord. लेकिन सब कुछ प्रभु तेरे लिए है। Yeah, my dear brothers and especially young brothers. और मेरे सारे भाई और खास करके जवान जो भाई लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता You हूँ, may see an attractive girl, आप एक बहुत ही आकर्षित लड़की को शायद देख सकते हैं dressed in an attractive way. और पूरी तरह से आप उसके ऊपर आकर्षित या मोहित हो जाए। What thought comes to you? तब ऐसे प्रलोभन के समय पर आप क्या विचार आपके पास आते हैं? Immediately you think, no, she should be for me. और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए होनी चाहिए? You may not think that she should marry you. आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि शायद ये मेरे साथ इसका ब्याह होना चाहिए, नहीं। At least you want her to look at you, आप यदि शायद ऐसा चाहेंगे कि शायद वो आपको देखे सिर्फ, come near you, और वो आपके नजदीक आए, speak to you, आपसे बात करे touch you, और आपको स्पर्श करे, hug you, आपको गले से लगाए। and then I need not tell what all will happen afterwards.
और मैं आगे बढ़कर कहना नहीं चाहता कि आगे सब क्या होगा। Why all these things? Because you think that somebody is made for you. आप ये सारी चीजें इसलिए कल्पना करती है सोचकर कि ये सब कुछ आपके लिए बनाया गया है। So this is the way she is created by God. और ये सब कुछ जो है वो जो लड़की जो है वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। So Lord, you have created beautifully for you, Lord, for your glory. और इस व्यक्ति को इस आपको सुंदर रीति से आपने आपकी महिमा के लिए आपके लिए सृजा है। Then you are not giving devil to enter into your home. तब आप शैतान को अनुमति नहीं देते आपके घर में प्रवेश करने के लिए। I told you, through the doubt, you are opening the gate of your home. मैंने जैसे कहा कि संदेह के द्वारा अपने घर का दरवाजा आप खोलते शैतान को प्रवेश करने के लिए। Then when you are tempted, you are tempted, and when you yield to temptation, you are opening the door of your house. और जब आप प्रलोभित होते और प्रलोभित होकर उसके अंदर अपने आप को सौंप देते तो घर का दरवाजा आप शैतान के लिए खोल देते हैं। The devil to come in and take valuable things. और शैतान को अनुमति देकर वो सारी मूल्यवान चीजों को ले लेने के लिए। He will take away the faith in you. आपका विश्वास वो ले लेगा। He will take away the love, the peace, the joy. वो जो प्रेम जो है वो आनंद जो है शांति वो ले लेगा। So we give room for the devil through doubt and through temptations. और हम उस प्रलोभन के द्वारा जो है शैतान को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। And third thing you give room is through isolation. और तीसरी चीज जो है वो एक अकेलेपन के द्वारा या अकेले रहने के द्वारा आप उसको अनुमति देते हैं। You are going to a fellowship आप संगति में जाते हैं and you keep yourself aloof. और संगति में रहकर भी आप अपने आप को अकेले बनाए रखते हैं। You don't share with people, you don't mingle with people. आप लोगों के साथ कुछ बांटते नहीं है, लोगों के साथ एक नहीं होते, संगति नहीं करते हैं। That is isolation. आप अपने आप को अकेला बनाए रखते हैं। And even in your home, आपके घर में भी do you spend time with your family members? क्या आपके परिवार के लोगों के साथ आप समय बिताते हैं? There are some people, when they reach home, they immediately go to the room and lock the room. कुछ लोग होते घर पर जाते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे को लॉक कर देते हैं। And they spend a lot of time with their mobiles and some kind of addictions. और कुछ ना कुछ उनके जो व्यसन होंगे या मोबाइल होंगे उसके साथ अपना समय बिताते हैं। You are giving room to the devil. तब आप शैतान को अनुमति या उस जगह को दे रहे हैं। Yeah, first the devil entered into your room, hall, and now you are inviting him to the room. और सबसे पहले उस आपके हॉल में घर के अंदर आपने अनुमति दी, अब आपके कमरे में भी आपने उसको शैतान को अनुमति दे दी। So the first group of people who hear the word of God but could not be saved, could not be delivered because they keep on giving a place for the devil to enter. और यहाँ पर जो है पहले झुंड के लोग जो लोग हैं परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन वे शैतान को जगह देते हैं, उनका सही उद्धार नहीं होता है, ना उनका सही छुटकारा उनको प्राप्त होता है। So never doubt the word of God. कभी भी परमेश्वर के वचन पर संदेह ना करें। Never doubt the love of God. परमेश्वर के प्रेम पर आप संदेह ना करें। That's why we need to be assured in the love of God. और इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम के अंदर पूरी तरह से आश्वासित होना है। We need to have the hope which is like the anchor. और हमें वो आशा को रखना है जो एक पूरी तरह से एक लंगर के समान है। So never doubt the word of God. कभी भी परमेश्वर के वचन पर संदेह ना करें। Never doubt the love of God. परमेश्वर के प्रेम पर भी कभी संदेह ना करें। Whenever a doubt comes, जब कभी संदेह आता है, you shoot the arrow of the word of God. परमेश्वर के वचन के तीर को उसकी ओर आप भेजें। Then the doubt will not affect you. तब वो संदेह आपको कोई असर नहीं करेगा। So we have, devil is throwing the arrows of doubt. और शैतान हमेशा वो संदेह के तीर आपकी ओर फेंकता है। God has given us the shield of faith that we can protect ourselves. और विश्वास की ढाल जो परमेश्वर ने हमको दी उसके द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। The shield of faith is a protection for all other armors. और हमारे जो विश्वास की जो ढाल है, हमारे अन्य जो हथियार जो हमें दिए गए उसकी और भी उसको सुरक्षा करने वाला है। We have the salvation helmet. और हमें उद्धार का टोप है। Breastplate of righteousness. और धार्मिकता की झिलम है। And shoes of preparation for the gospel. और सुसमाचार के फैलाने वाले जो जूते हैं। Truth of belt. और सत्य का कमरबंद है। And sometimes some of these armors may be weak. और कई बार ये जो सारे हथियार जो होते हैं कई बार वो निर्बल या कमजोर पड़ सकते हैं। But when you have faith, even if you have a broken helmet, you can protect yourself. लेकिन यदि आपके पास विश्वास है उस ढाल के समान, यदि आपका एक टूटा हुआ हेलमेट भी होगा तो उसकी भी वो रक्षा करेगा ढाल के द्वारा। Even this breast of righteousness is weak, you can protect.
यदि आप धार्मिकता की झिलम पहने हुए यदि कमजोर है तो उस विश्वास की ढाल से उसकी भी आप रक्षा करेंगे। So faith is the armor of armors. और यहाँ पर जो विश्वास जो है जितने हथियार बंद है उनका भी वो ऊपर का हथियार है। That's why Peter, when he was tempted by the devil, Jesus said, I pray that your faith will not fail. और इसलिए जब पतरस की प्रलोभित वो होता है, यीशु मसीह उसके लिए प्रार्थना करके कहता है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे। In your fight against the devil or when you are fight against the world, you may lose everything, but don't lose the faith. और शैतान और संसार के विरोध में जब आप संघर्ष या युद्ध करते हो आप सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन आपके विश्वास को आप न खोए। Faith is against doubt. और संदेह के खिलाफ जो है विश्वास है। What is the faith? विश्वास क्या है? Even Peter went and fell down like anything in your spiritual life, but still he had a small thought that God is loving him. और यहां तक पतरस जो है पूरी तरह से गिर जाता है, असफल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर विश्वास होता है कि फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। The second group of people we read in 13th verse. और 13 वचन में दूसरे झुंड के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। When they listen to the word of God, joyfully they accept the word of God. और जब वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं बड़े आनंद के साथ उसको ग्रहण करते हैं। They are very emotional people. बहुत ही भावुक वे लोग हैं। But the root is not going deeper and deeper into them. लेकिन वे जड़ जो है वो पूरी तरह से गहराई में नहीं जाती है। They have faith only for a short time. और एक छोटे क्षण भर के समय के लिए ही उनके अंदर विश्वास होता है। So after some time they backslide. थोड़े समय के बाद वो पीछे हट जाते हैं। First group of people, they don't repent and get delivered. पहले झुंड के जो लोग थे वो पूरी तरह से वो उनका उद्धार नहीं होता है। Second group of people are those who backslide. दूसरे झुंड के लोग जो है वो पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं। It's because the root is not going deeper into the word of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन में उनकी नींव गहराई तक नहीं जाती है। The root indicates the inner life of a man. और यहाँ पर जो नींव जो है, जो जड़ जो है, वो व्यक्ति के भीतरी जीवन के बारे में दिखाता है। How is your personal prayer time with Jesus? और यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन कैसा है? How is your conscience? आपका विवेक कैसा है? How is your heart? Is it a pure heart? आपका हृदय क्या वो पवित्र हृदय है? Are you honor seeking? क्या आप आदर की खोज करते हो? Whatever you do, are you bothered about the opinions of men? जो भी आप करते हैं क्या आप लोगों की राय या उनके मत के बारे में सोचते रहते हैं? You want to please people? आप लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं? All these things are not known much outside. ये सारी चीजें जो है बाहर से ये दिख नहीं पाती है। These are all part of the inner life. ये सारी जो चीजें जो हमारे भीतरी जीवन का एक भाग है। How is your thought life? आपके विचार का जीवन कैसा है? In your thought life, where are the roots? Are they going deep into Christ or they are spread into the world? और क्या आपका जो विचार के जीवन जो है वो आपके विचार परमेश्वर के वचन की गहराई में जाते हैं या फिर आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर भी फैले हुए हैं? We read in Romans chapter 12 and verse 2. रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं, Be not conformed to the fashion of this world, but be renewed in your mind, so that you may know what is the perfect, good and acceptable will of God. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Your thought life, if your root is deep, you will know what is the will of God, good will of God, acceptable will of God and perfect will of God. और यदि आपके वैचारिक जीवन के अंदर आपके विचार परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते हुए भीतर है, तब आप परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा आप जान सकते हो। Many times you struggle to find out the will of God. कई बार आप संघर्ष करते हैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। You don't know whether it is good or bad, आप ये समझ नहीं पाते कि ये अच्छा है या बुरा है, whether it is godly or worldly. और क्या ये ईश्वरीय है या ये संसारिक है, नहीं जान पाते हैं। It's because your root is not deep into the word of God. ये इसलिए है क्योंकि आपके विचार परमेश्वर की उस गहराई के अंदर जड़ नहीं पकड़े हुए हैं। The root in your thoughts will go deeper only when there is a transformation. और ये जड़ आपके विचारों के अंदर तभी गहराई तक जाएगी जब एक पूरी तरह से बदलाव होगा। I don't conform to the world. मैं संसार के सदृश नहीं बनता हूँ। I don't want to live according to the standards of the world. संसार के जो स्तर जो है, जीवन जीने के मापदंड है, उसके अनुसार मैं जीवन नहीं जीता हूँ। A life according to the standard of the world is all the roots are there only on the surface. और संसार के जो स्तर के अनुसार, If this is a stem,
All the roots are only on the surface. और यहाँ पर संसार के अनुसार जीवन जीना मतलब जो हमारे सब कुछ, जो हमारे विचार जो है, सारी चीजें, वो संसार, वो जड़ वहीं तक ऊपरी सतह पर ही रहती है। A small wind, the tree will fall. थोड़ी सी वहां पर एक आंधी आ जाएगी और वो पेड़ गिर जाएगा। A small animal comes and pushes the tree, it falls down. और छोटा सा जानवर आकर उसको वो धक्का मारेगा और वो पेड़ गिर जाएगा। A small boy comes and pulls one of the branches, the tree falls down. छोटा सा बच्चा आकर वो उसको, उसकी डाली को खींचेगा और वो पेड़ गिर जाएगा। Because all your thoughts are only worldly, it is not going deeper and deeper and deeper into God. और क्योंकि आपके सारे विचार जो है वह संसारिक है, ऊपरी सतह पर ही है, वो परमेश्वर के वचन में और गहराई में नहीं जा रहे हैं। There's another verse in 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय वचन 5। Our weapons are not according to the flesh. 2 Corinthians 10, 4 and 5. और वहां पे 4 और 5 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, They are having the strength of God. पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। So we always demolish all the thoughts which are rising against Christ. और इसलिए हम हर कल्पनाओं को, हर ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसे खंडन करते हैं। We bring every thought unto the obedience of Christ. हर एक विचार, हर एक ऐसी भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So many times the thoughts will be flying like this. और कई बार हमारे विचार ऐसे ही उड़ते रहेंगे। You bring those thoughts into the obedience of Christ. That means the root will go down. और उन सारे विचारों को पकड़कर आप उन सारे को परमेश्वर के उस वचन की जड़ में लाकर आप लाने का प्रयास करते हैं, मतलब वो गहराई में जाते हैं। So the second group of people are those who backslide often. Sometimes they come back to God, then again backslide, come back to God, again backslide. और दूसरे प्रकार के जो झुंड हमने देखे, जो अक्सर जो है वो पीछे हट जाते हैं, कई बार वो वापस आते हैं, वापस पीछे हट जाते हैं, और यही उनकी प्रक्रिया चलती है। We read in Colossians chapter 2 and verse 6. कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 As वचन में your पढ़ते हैं, Christ, go deeply rooted in Him. और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के which verse brother? Colossians 2:6. और कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय वचन 6, As you have इसलिए received Christ, yeah. जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, वैसे ही उसमें हम चलते रहे। Yeah. So it is not enough if we receive Christ. We'll have to go, our roots have to go deeper and deeper in Him. और इतना ही काफी नहीं कि हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन हमारी जड़ें जो है और भी गहराई में हम उसको जाना चाहिए। To tell God, Lord, I am deeply rooted in you. प्रभु से कहे, प्रभु मैं पूरी तरह से तुझ में जड़ पकड़ते हुए हूँ। I want to be deeply rooted in you, Lord. प्रभु मैं पूरी तरह से जड़ पकड़ते हुए तुझ में रहना चाहता हूँ। Nobody can shake me. कोई भी मुझे आकर नहीं हिला सकता। In Psalm 16 we read. भजन संहिता 16 में हम पढ़ते हैं। Psalm 16. भजन संहिता 16। Yeah. I have God before me. और परमेश्वर, प्रभु मेरे सामने एक सुरक्षा देने वाला है। I have kept the Lord always before me. 8th verse, 16:8. और 8 वचन में लिखा है कि मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। And He is at my right hand. मेरे दाहिने हाथ में वो है। So I am not moved. और इस कारण से मैं नहीं डगमगाऊंगा। So that is the hope of every Christian. और ये हर एक मसीही की एक आशा है। Lord, whatever I do, I have kept you in my front, Lord. जो भी प्रभु बातें जो है, प्रभु मैंने सब बातों में तुझे मेरे सम्मुख रखा है। Whenever the world offers something, I want to keep you in my front, Lord. जब कभी संसार मेरे सामने कुछ भी लाकर खड़ा करे, प्रभु मैं सबके मेरे सामने प्रभु तुझे रखना चाहता हूँ। I want to take every decision by keeping you before me, Lord. और प्रभु तुझे सामने रखते हुए मेरे जीवन के हर निर्णय को मैं लेना चाहता हूँ। Then we will never go backsliding. और तब हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। The third group of people, और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, they don't backslide. वे पीछे नहीं हटते हैं। They are in the church, they are in the fellowship, they are in the Lord. कलीसिया में वे आते हैं, संगति में है, प्रभु में बने रहते हैं। But there is no fruit in their life. लेकिन उनके जीवन में कोई फल नहीं है। Why? क्यों? Because it something happens externally. क्योंकि बाहरी तौर से कुछ होता है। Lot of thorns, other bushes and all come and crush these people. और बहुत सारे बाहर से झाड़ियां, ऊंट कटारे जो है वो आकर ऐसे लोगों को दबा देता है। External factors. बाहरी जो बातें जो वे
The previous group, the internal factor, इसके पहले का जो झुंड था उनके अंदर वो भीतर की बातें थी, inner life, भीतरी जीवन, thought life. उनके विचार का जीवन। But here, most of the disturbances are because of the external factors. और यहाँ इस प्रकार के झुंड जो बहुत सारे इसलिए विचलित होते क्योंकि बाहरी सतह से बहुत सारी चीजें उन पर आती है, It is because of the pleasures, sinful pleasures, और क्योंकि पाप में सुख आनंद के कारण or wealth. और धन के कारण। Nowadays, we have to be very careful because our children are having lot of money. इन दिनों में हमें बहुत ही सावधानी बरतनी, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों के पास बहुत अधिक पैसा है, They don't know how to spend the amount. उनको नहीं पता है कि उन पैसों को कैसे खर्च किया जाए, So they live as they like. और जैसे उनके मन में आए, जैसे उनको पसंद आए, वैसा वो जीवन जीते हैं। So the result is that they are not fruitful when they come to the fellowship or in their family, in their और personal lives. और उनके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार के अंदर, संगति में परिणाम ये होता है कि वे फलदायी नहीं होते हैं। Are you a fruitful person in your church? क्या आपकी कलीसिया के अंदर आप एक फल देने वाले फलदायी व्यक्ति है? Are you a fruitful person as far the Lord is concerned? और जैसे परमेश्वर के संबंध में जो है, आप क्या एक फल देने वाले व्यक्ति है? Yeah, again, your friends, what type of friends you have? और दूसरी बात, किस प्रकार के दोस्त आप रखते हो? Nowadays, easily boys have girlfriends and girls have boyfriends. इन दिनों में बड़ी आसानी से जो लड़के बॉयफ्रेंड जो है, जो लड़के हैं उनके गर्लफ्रेंड्स हो सकते हैं, जो लड़की है You have to really- बॉयफ्रेंड्स भी रखते हैं। You have to really ask yourself, are they helping you to grow in spiritual life, or they are like external factors which doesn't allow you to grow? आपको सच में जांचने की जरूरत है कि क्या ये आत्मिक जीवन में आपको किसी भी रीति से सहायता कर रहे हैं, लेकिन या कि फिर बाहरी तौर से पूरी तरह से आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं ये। So there is no fruit in their lives. इसलिए इस कारण से उनके जीवन में कोई फल नहीं है। Or we can say that they are not useful to God. और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ये परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं है। You imagine there's a home. कल्पना करके देखिए, घर है, There's a boy living in that home. उस घर के अंदर एक लड़का रहता है। Morning 9 o'clock, he comes to the dining table. सुबह 9 बजे वो डाइनिंग टेबल पर आता है, He takes the breakfast ब्रेकफास्ट लेता है and goes away. और फिर चले जाता है। And 12:30, he comes to the dining table वापस 12:30 बजे उस डाइनिंग टेबल पर आता है, and he takes the lunch, दोपहर का भोजन लेता है, goes away. चले जाता है। Evening for coffee and snacks. और शाम को फिर वो कॉफी और नाश्ते के लिए आता है, Night dinner time he comes. और रात को भी डिनर के समय पर आता है, After that he is not there. और उसके बाद वो वहां पर नहीं है। What do you think about such a person? और ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या सोचेंगे? Will the parents be happy about him? क्या माता पिता इससे खुश होंगे? What does his brothers and sisters say about him? उसके भाई बहन उसके बारे में क्या कहेंगे? They will say he is an irresponsible boy. और वे कहेंगे ये गैर जिम्मेदार लड़का है। He doesn't know where his father is working, how hard his father is working, where his mother is working, or what mother is doing in a home. ये लड़का नहीं जानता उसका पिता कितना कड़ी मेहनत करता है, कहाँ पर काम करता है, उसकी माता कहाँ पर है, वो कुछ नहीं जानता है। How his clothes are washed and who helps all these things. कैसे उसके कपड़े धोए जाते, कैसे भोजन, सारी बातें की जाती, कुछ नहीं पता उसे। Irresponsible boy. पूरी तरह से गैर जिम्मेदार ये लड़का है। Parents will be worrying. माता पिता पूरी तरह से उसके बारे में चिंता करेंगे। Nowadays in our churches there are boys like that, girls like that. और आज हमारे कलीसिया के अंदर भी ऐसे लड़की और लड़कियां हैं। Now coming to God's family, God's house. अब हम आते हैं परमेश्वर के घर के अंदर, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर। Just at the start of the meeting you come for the meeting. और मीटिंग शुरुआत होने से पहले ही आप सभा के अंदर आते हैं मीटिंग में। As soon as the meeting is over, you disappear. और मीटिंग जैसे ही सभा समाप्त हो जाती है, तुरंत आप चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं। Then you come for the next meeting. और उसके बाद दूसरी सभा में आप आते हैं। You are regular for meeting. आप बहुत नियमित रूप से सभा में भाग लेते हो। The other boy was regular for all the food, morning, afternoon and night. जैसे कि वो लड़का अपने घर के अंदर वो खाने के लिए सुबह शाम दोपहर में पूरी तरह से नियमित था। But you don't know anything about what is happening in the fellowship, what are the elders doing and other brothers and sisters doing. You don't know anything about it. लेकिन आप संगति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखते कि आप प्राचीन क्या कर रहे हैं, अन्य भाई बहन कैसे है, क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं जानते। Whether somebody is sick, whether somebody is struggling, कोई व्यक्ति बीमार है या कुछ व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, some young people going astray and they need love. और कुछ जवान व्यक्ति है जो पूरी तरह से भटक रहे, उन्हें प्रेम की आवश्यकता है। If you don't know anything,
you are like this group of people. यदि आप ऐसा कुछ भी कलीसिया के संबंध में नहीं जानते तो आप इस झुंड के लोगों के समान हैं। Yeah, you are not giving fruit. आप फल नहीं ला रहे हो। That's why Jesus says in John chapter 15, इसलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15 में, all the vine which is not giving fruit, branches, he will cut and throw it away. और सारी डालियां जो फल नहीं लाती उनको पूरी तरह से काट कर फेंक दिया जाएगा। If we are like that, we are in the danger. यदि हम ऐसी अवस्था में हैं तो हम खतरे में हैं। But the branches which are giving fruits, लेकिन ऐसी डालियां जो फल लाती है, some fruits, थोड़ा फल लाती है, the vine, the gardener prunes them so that it can give more fruit. और वहां पर वो माली आकर उनको छांटता है ताकि वो और अधिक फल ला सके। So God has placed you and me in the place where we live for a particular purpose. परमेश्वर ने आपको और मुझे एक ऐसी जगह पर रखा है एक खास उद्देश्य के साथ। So are your friends helping you? Worldly friends, are they helping you to become fruitful? और क्या आपके संसार के मित्र आपकी सहायता कर रहे हैं कि आप अधिक फलदायी बन सकें? For many people, their close friends are only their mobiles. और कई लोगों के लिए उनका बहुत ही नजदीकी मित्र उनका मोबाइल है। And what type of scenes, YouTube videos you are engaged with? किस प्रकार के चित्र, किस प्रकार के YouTube में वीडियो के आप देख रहे हैं? Are you watching porn, computer porn, pornography? और क्या आप अश्लील बातें आपके मोबाइल में देख रहे हो? Then how can you be fruitful in the Lord's house? तो कैसे आप परमेश्वर के घर के अंदर फलदायी हो सकेंगे फिर? Some families are watching serials, कुछ परिवार जो है वो सीरियल को देखते हैं useless movies, और पूरी तरह से जो बिनोपयोगी, पूरी तरह से व्यर्थ की जो पिक्चर मूवीज जो है फिल्म में वो देखते हैं। and for some of you the unconverted relatives are very, very, very important than brothers and sisters. और आप लोगों के लिए, कई लोगों के कलीसिया के जो भाई बहन, उनसे बढ़कर आपके जो विश्वास में नहीं उद्धार न पाए हुए आपके रिश्तेदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है या वो करीब आपके Or हैं। you are involved in some kind of fight and argument and problems. और कहीं ना कहीं पे आप विवाद के अंदर, ऐसे झगड़े के अंदर आप लगे हुए हैं, We can never bear fruit. तब हम कभी भी फल नहीं ला पाएंगे। That's why in Hebrews chapter 12 and verse 1 and 2 we read, let us do away with all the burdens and sins. और इसलिए इब्रानियों 12:1-2 के अंदर लिखा है, इसलिए सारे इन बोझों को, इन पापों को पूरी तरह से हम दूर कर दें। So let us be like the fourth group of people. तो आइए हम चौथा जो झुंड है उस प्रकार के लोग बने, Whenever they hear the word of God, जब कभी वचन को वे सुनते हैं, they receive it with a good heart एक अच्छे हृदय के साथ उसे ग्रहण करते हैं and they give fruit. और तब वे फल लाते हैं। In Matthew, the same passage we read in 13th chapter. मत्ती 13 के अंदर इसी प्रकार इसी दृष्टांत को हम पढ़ते हैं। There the characteristics of the good land is given. और वहां पर अच्छी भूमि के गुण दिए गए हैं। They hear and they get convicted. वे वचन को सुनते हैं और उसका बोध उनको होता है। What is the meaning of getting convicted? और उस वचन से उनको बोध मिलता है, उसका अर्थ क्या है? They hear the general message. वे एक कोमल वचन को सुनते हैं। They read a general passage in the Bible. और परमेश्वर का एक साधारण सा वचन का भाग वो पढ़ते हैं। And the second step is that they personalize the word of God. और दूसरा भाग ये करते कि व्यक्तिगत रूप से उन सुने हुए वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। That is the meaning of conviction. और ये है एक बोध दिलाया जाना उसका। They see how this word of God applies to my personal life. वे ये सोचते हैं कि परमेश्वर का ये वचन मेरे जीवन में कैसे लागू होता है। The place where I work, how this word is applied in my life. और जहां पर मैं काम करता हूं, मेरे काम की जगह पर परमेश्वर का ये वचन कैसे लागू होता है। I think in 1 Corinthians chapter 10 and 31, we do whatever you do for the glory of God. पहला कुरिन्थी 10:13 में जो कुछ हम करते हैं हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। That is a general verse. ये एक सामान्य एक वचन है। You may hear it in the church or when you may read it. आप जब पढ़ते हैं कलीसिया में आप इसको सुन सकते हैं। And you are going to your workplace. जब आप काम पर जाते हैं, Somebody has bought a very attractive gadget, electronic gadget. और किसी व्यक्ति ने बहुत ही आकर्षक एक इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा गैजेट लिया है। Lord, I thank you for the wisdom you have given to the people to make this a very wonderful equipment, Lord. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने लोगों को इतना अच्छी बुद्धि दी है कि इतना अद्भुत ये यंत्र या एक गैजेट को बना सकते हैं वो। Or some good-looking man or woman coming to you, start praising God. और बहुत ही सुंदर या आकर्षित व्यक्ति, लड़का या लड़की आपके सामने आते तब परमेश्वर की स्तुति करने आप लगे। Whatever you do for the glory of God. जो कुछ आप करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए आप करें। Lord, they are not created for my glory, प्रभु मेरी महिमा के लिए उनको नहीं सृजा गया है, for my satisfaction, मेरी संतुष्टि के लिए नहीं है or for my pleasure.
और मेरे सुख के लिए नहीं है। They are created for your glory, Lord. प्रभु ये तेरी महिमा के लिए बनाए गए हैं। So we remember the four groups of people. और यहाँ पे 4 झुंड के जो लोग हैं उनको हम याद करेंगे। Am I like the first group who gives room to the devil? और क्या मैं पहले प्रकार के झुंड का व्यक्ति हूं जो शैतान को अनुमति देता है? Or second group who don't have a strong internal life? और दूसरे प्रकार के झुंड जो उनके अंदर पूरी तरह से बहुत ही मजबूत भीतरी जीवन, आंतरिक उनका भीतरी जीवन नहीं है, Who keep on backsliding spiritually? और आत्मिक रूप से हमेशा वे पीछे भटकते जाते हैं। Third group, they allow all the external things to come and crowded in their mind so that they don't have time to spend with God and for the internal life. और तीसरे प्रकार के झुंड के व्यक्ति है कि अन्य बाहरी जो सतह की या चीजें जो है परिस्थितियों को उनके जीवन में वे अनुमति देते हैं ताकि परमेश्वर के साथ समय बिताने में उनके So many भीतरी जीवन में external- उनके पास समय नहीं है। So many external things make them fruitless for God. बहुत सारी बाहरी जो चीजें पूरी तरह से उनको परमेश्वर के लिए पूरी तरह से बिना फल के बना देती है। Lord, only one life I have. प्रभु एक ही जीवन मेरे पास है। I want that life to be counted, Lord. प्रभु उस जीवन को प्रभु मैं गिनना चाहता हूं, उसके योग्य प्रभु। Counted for you, Lord. प्रभु मैं उसके लिए तेरे लिए जीना चाहता हूं। I don't want to waste my life, Lord. मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। When you conduct an examination in a class, जब एक क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर आप एक परीक्षा को लेते हो, after 3 hours, you receive the papers. 3 घंटे होने के बाद उस पेपर को आप वापस लेते हो। Some of the papers are blank. कुछ पेपर जो है वो पूरी तरह से खाली या ब्लैंक होते हैं। So in some universities, they pay you 10 rupees or 15 rupees for valuing one paper. और कई यूनिवर्सिटी के अंदर 10 रुपये 15 रुपये आपको दिया जाता है उस पेपर का वैल्यू करने के लिए, चेक करने के लिए। One student has written only one line. एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ने केवल एक ही पूरे उस एग्जाम के अंदर लिखा, एक ही लाइन, Dear teacher, enjoy your remuneration. और वो बच्चा ऐसा लिखता है कि प्रिय शिक्षक, आपका जो 10 या 15 रुपए का आपका जो भत्ता मिलने वाला है उसका आप आनंद उठाए। That is empty paper. You need not value. You need not read. Just to put a 0 mark, you get 15 rupees. और वहां पर आपको कुछ उसका वैल्यू करने का जरूरत नहीं, वहां पे 0 लिख दो, लेकिन आपको 15 रुपए मिल जाएंगे। And some people have written stories, irrelevant things. और कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही ऐसी कहानियां लिखी जिसका कोई काम वहां ऐसे ही लिखी है। Some people initially spend idle and then after that they start writing. और कुछ विद्यार्थी शुरुआती समय के अंदर ऐसे ही बैठते हैं और फिर थोड़े समय के बाद फिर लिखना आरंभ करते हैं। No time to finish all the questions. और उनके पास समय नहीं रहता सारे प्रश्नों को लिखने के लिए। When we stand before the judgment seat, it is like submitting our answer sheets. जब हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे तो वो ऐसा ही होगा जैसे हम अपनी आंसर शीट जो है परमेश्वर को सबमिट कर रहे हैं। Are we going to submit a empty blank paper like empty life without doing anything for God? और क्या हमारा एक खाली एम्प्टी, जो पूरी तरह से खाली जो जीवन है, क्या परमेश्वर को बिना कुछ उसके लिए किया परमेश्वर को हम ऐसे ही देंगे? Or like a paper which has got irrelevant things and stories written. और ऐसा पेपर प्रभु को देंगे जिसके अंदर ऐसी कहानियां हैं जो पूरी तरह से किसी काम की नहीं है। Yeah, Lord, I want to submit my life as a full answer book written, relevant answers, Lord. I want to submit like that. प्रभु मैं अपना जीवन उसी उस उत्तर के समान प्रभु तुझे देना चाहता हूं जो पूरी तरह से जो योग्य उत्तर है, सही उत्तर है, उन उत्तरों के साथ। May God help us to live such a life. प्रभु हमारी सहायता करे ऐसा जीवन जीने के लिए। Shall we close our eyes and pray to God? आइए हम आंखें बंद कर प्रभु से प्रार्थना करें। Our dear Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, reveal about our heart condition, Lord. हमारे मन की, हृदय की अवस्था हम पर प्रकट कर। Nothing is secret, Lord. कुछ भी गुप्त नहीं है, Nothing is hidden, Lord. कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, But we want it to be revealed, Lord. हम चाहते कि प्रभु सब हम पर प्रकट कर। We want our roots to go deeper. हम चाहते कि हमारी जड़ें और भी गहराई में जाए। We want our external tree to go bigger. प्रभु हम चाहते कि हमारा बाहरी जो पेड़ जो है और भी बड़ा बन जाए। And we want to be fruitful people, Lord. हम ऐसे लोग बने जो पूरी तरह से फल लाने वाले हो। The family where we are, जिस परिवार में हम हैं, the church where we are. जिस कलीसिया में हम हैं, Help us to be fruitful and to be a blessing, Lord. प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम फलदायी बन सके और आशीष का कारण बन सके। Bless all those who have joined through this Zoom connection. इस जूम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं उन सबको आशीष दे। Bless the families, Lord. उनके परिवारों को तो आशीष दे। The mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. यीशु मसीह उद्धारकर्ता के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen.
आमीन। Amen. Thank you, brothers and sisters, for your time.